So starting with the next lecture for respiration and circulation, if you remember last time we were talking about the components of blood. Blood has two main parts. The liquid part of the blood is called as plasma, and the solid part, that is formed element, is called as blood cells or corpuscles. As you know, plasma constitute around 55% of the whole blood and cells are 45%. Last time we have seen what all things are present in the plasma. Plasma में क्या क्या present था वो last time हमने पढ़ा था. So today we have to discuss about the different type of cells present in blood. लास्ट टाइम ही मैंने आपको बताया था कि ब्लड में तीन मेन टाइप की सेल्स होती हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज आरबीसी, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज प्लेटलेट. दे मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स. इन तीनों सेल्स के बारे में आज हमें डिस्कस करना है, आज हमें पढ़ना है. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल 8.10, दैट इज आरबीसी, ऑल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट. RBC, the name was given because of its color. It is red blood cells or red blood corpuscles as it appears red in color. Red होने की वजह से उसको red blood cells कहा जाता है. This is the most abundant cell present in the blood. हमारे blood में सबसे ज्यादा cells में अगर कोई है तो वो RBC है, जिसका count millions में होता है. Okay. Now as far as the shape of the RBC is concerned, it is circular, biconcave and enucleated. Let me explain. It is circular. Circular doesn't mean it is spherical in shape. It is circular but a disc shape. It is circular but a disc shape means it is comparatively flat. Biconcave. Biconcave मतलब बीच का हिस्सा, बीच का पोर्शन जो होगा वो दबा होगा और साइड का जो पोर्शन होगा वो थिक होगा. So it is circular, disc shape and biconcave. बीच का पोर्शन दबा हुआ है और साइड में वो थिक होती है. It is enucleated. Enucleated means without nucleus. RBCs में nucleus नहीं होता है. Remember, at the time of formation of RBC, जब RBC का जन्म होता है, जब RBC का formation होता है, तो अर्ली स्टेज में आरबीसी में न्यूक्लियस होता है. बट लेटर ऑन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन आरबीसी का जो न्यूक्लियस है वो डीजनरेट हो जाता है. तो इन द इनिशियल स्टेज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी हैज न्यूक्लियस, बट इन द मैच्योर आरबीसी, द आरबीसी विच इज सीन इन द ब्लड सर्कुलेशन doesn't have nucleus. That is why it will be considered as enucleated RBC. रेयरली ऐसा होता है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में इमैच्योर आरबीसीज आ जाती हैं, यानी जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है. अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में व्हेन मैच्योर आरबीसीज आर प्रेजेंट इन द ब्लड, इट डजंट हैव न्यूक्लियस. Now RBC do not have mitochondria. Not only mitochondria, many cell organelles are missing in RBC. RBC के अंदर बहुत से cell organelles नहीं हैं. Once RBC come in blood circulation, एक बार वो circulation में आ गई तो उसमें division, cell division नहीं होगा. जो RBC circulation में आ जाती है उसका cell division नहीं होता है, उसमें mitochondria नहीं है, बहुत से दूसरे cell organelles missing हैं. Due to absence of cell organelle, सेल ऑर्गेनल्स नहीं है तो उसके अंदर बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होते हैं. बाय द वे, आरबीसी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके लिए हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है. तो अंदर जो चीज मिसिंग है वो क्यों मिसिंग है? सो दैट ज्यादा हीमोग्लोबिन अंदर अकोमोडेट हो सके. नाउ RBC is red in color due to presence of hemoglobin. HB stands for hemoglobin. बच्चों RBC में hemoglobin है, red color pigment है, which is also considered as respiratory pigment. हमारी RBC red color की, हमारा blood red color का है because it has hemoglobin. कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके ब्लड के कलर अलग अलग होते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड. जैसे in some cases the blood may be blue in color. In some cases it may be green in color depending upon the different type of pigments present in the blood. We have hemoglobin which gives red color to the blood. Now hemoglobin की अगर बात करें, hemoglobin का range, मेल्स में हीमोग्लोबिन कितनी होती है? 14 to 17 ग्राम %. That is 14 to 70 ग्राम per 100 ml of blood.
इतनी हीमोग्लोबिन मेल्स में होती है और फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट कंपैरेटिवली कम होता है। फीमेल का हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना है? 13 to 17 ग्राम परसेंट, दैट इज 13 to 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। अभी फीमेल्स में हीमोग्लोबिन कम क्यों है? ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। फीमेल का मेटाबॉलिज्म मेल के कंपैरिजन में स्लो होता है, दैट इज व्हाई फीमेल हैज कंपैरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। नाउ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन और डिफिशियंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, या तो आरबीसी की डिफिशियंसी, उसका काउंट कम हो जाए, या हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो जाए, ऑल दिस कंडीशंस आर कॉल्ड एज एनीमिया। अगर किसी का हीमोग्लोबिन रेंज 10 पे आ गया या 10 से भी नीचे आ गया, 10 ग्राम परसेंट हो गया या उससे भी लेस हो गया, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एनीमिया। एनीमिक इंडिविजुअल में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होने की वजह से बॉडी टिश्यू, बॉडी सेल्स आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जिसके वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। ना एज फार एज आरबीसी काउंट इज कंसर्न, हमारे ब्लड में कितनी आरबीसी होती है, कितनी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कितनी होती हैं? इन द केस ऑफ मेल इट इज 5.1 to 5.8 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। एक क्यूबिक एमएम आप समझ रहे हैं कितना बड़ा होगा? 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट 1 मिलीमीटर, मीन्स मोर और लेस इक्विवेलेंट टू 1 शुगर क्रिस्टल। शक्कर के एक दाने के बराबर अगर हम ब्लड लें तो उसमें कितनी आरबीसी होगी? 5.1 to 5.8 मिलियन आरबीसीज आर प्रेजेंट इन सच लेस अमाउंट ऑफ ब्लड। फीमेल्स में आरबीसी काउंट थोड़ा कम है, द रीजन इज सेम, बिकॉज फीमेल का मेटाबॉलिज्म कंपैरेटिवली स्लो है। फीमेल के अंदर आरबीसी काउंट कितना होता है? 4.3 से लेके 5.2 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। सो दिस ऑल अबाउट द नॉर्मल काउंट, काउंट एबनॉर्मल भी हो सकता है, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। नाउ एज फार एज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कंसर्न, आरबीसी का फॉर्मेशन, आरबीसी के बनने के प्रोसेस को, उसके फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अभी एरिथ्रोपोइसिस के लिए एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन, यानी हमारी बॉडी में एक ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जहां पे एरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन में कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं कॉल्ड एज हीमोसाइटोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट्स। So hemocytoblast or reticulocyte is a specific type of cell present in hemopoietic organ which is responsible for the formation of RBC, means they are responsible for erythropoiesis. In short you can say ये RBC की माँ है। हीमोसाइटोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट ये आरबीसी की माँ है जो आरबीसी को जन्म देती हैं। अभी एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन यानी किस ऑर्गन में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है? फीटस में, मतलब न्यूबॉर्न में या फीटस में आरबीसी का प्रोडक्शन लिवर और स्प्लीन में होता है, लिवर में और स्प्लीन में होता है। और एडल्ट में इसका फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होगा। रेड बोन मैरो, देखो लिवर और स्प्लीन आई होप आप समझ रहे हैं। लिवर कलेजी को कहते हैं, स्प्लीन तिल्ली को कहते हैं। यहां पे आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। रेड बोन मैरो, बोन के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट होता है, नली के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट होता है, बोन के अंदर जो गूदा होता है वो व्हाइट होता है और किनारे पर रेड होता है। तो जो रेड वाला पार्ट है वो रेड बोन मैरो कहलाता है और वहां पे आरबीसी का प्रोडक्शन होगा। तो वंस अगेन आरबीसी के फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, जो एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन में होता है। एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन इन फीटस इज लिवर एंड स्प्लीन और एडल्ट में रेड बोन मैरो है। और एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन के अंदर जो सेल्स आरबीसी को जन्म देती हैं वो हीमोसाइटोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट्स हैं। नाउ अभी एक और चीज कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जब आरबीसी बन रही है मतलब एरिथ्रोपोइसिस हो रहा है, तो उस टाइम किडनी से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन।
किडनी से सिक्रीट होने वाला हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जो आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मतलब एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है, राइट। अभी उसके बाद जब आरबीसी बन रही है, जब आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आरबीसी के फॉर्मेशन के टाइम पे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी आरबीसी के फॉर्मेशन में कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ेगी? विटामिन B12 की जरूरत पड़ेगी, फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ेगी और हीम नाम के प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। मतलब इन तीनों की मदद से एरिथ्रोपोइसिस होता है। ये हार्मोन है और ये कंस्टिट्यूएंट हैं जिनका रिक्वायरमेंट है आरबीसी के प्रोडक्शन में। अभी एक बार आरबीसी बोन मैरो में बन गई, एडल्ट में बोन मैरो में बन गई, इट कम्स इन जनरल ब्लड सर्कुलेशन, वो बोन मैरो से बाहर निकल के ब्लड वेसल में आ जाती है। वंस आरबीसी एंटर्ड इन दी ब्लड वेसल में आने के बाद वो आरबीसी 120 डेज 120 दिन तक हमारी बॉडी में घूमते रहती है, अपना काम करते रहती है। आरबीसी का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। 120 डेज कंप्लीट होने के बाद 120 डेज कंप्लीट होने के बाद आरबीसी की डेथ हो जाती है, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, डीजनरेट होने लगती है। तो ये आरबीसी जब डेथ हो जाती है, आरबीसी की 120 डेज सर्कुलेशन में रहने के बाद, सर्कुलेशन में घूमने के बाद जब उसकी डेथ हो जाती है, तो जब आरबीसी की डेथ होगी तो उसे आरबीसी का ग्रेव यार्ड हमारी बॉडी में लिवर और स्प्लीन को कहा जाता है। यानी वॉर्न आउट आरबीसी, डेड आरबीसी, फ्रेगमेंटेड आरबीसी, जितनी आरबीसी टूट फूट गई हैं, वो सभी आरबीसी को लिवर में और स्प्लीन में दफना दिया जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी, वो आरबीसी की कब्रिस्तान है। द नेक्स्ट पार्ट, it is all about the basic thing and applicable for RBC. Now, in certain cases what happen, RBC count normal से ज्यादा हो जाता है। Increased RBC count, अगर RBC count normal से ज्यादा हो गया तो this condition is called as polycythemia. Polycythemia is the increased RBC count. अभी RBC count बढ़ने से यूजुअली कोई मेजर इश्यू नहीं होता, लेकिन आरबीसी काउंट अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इससे ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ब्लड जरूरत से ज्यादा थिक हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने की और हार्ट के ऊपर आने वाले फोर्स प्रेशर की डिमांड बढ़ सकती है। तो आरबीसी काउंट थोड़ा बहुत बढ़ता है, इट्स ओके। बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, इट मे इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। द नेक्स्ट पार्ट, अगर आरबीसी काउंट नॉर्मल से कम हो जाए, मीन्स डिक्रीज्ड आरबीसी काउंट, अगर आरबीसी काउंट डिक्रीज होता है, सो दिस एबनॉर्मल कंडीशन इज कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइटोपिनिया। एरिथ्रोसाइटोपिनिया इज द डिक्रीज्ड आरबीसी काउंट। हाँ, आरबीसी काउंट अगर कम होता है, इट हैज लॉट ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। देखो आरबीसी काउंट नॉर्मल यहां पे मैंने बताया ना 5.1 to 5.8 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड इज एप्लीकेबल फॉर मेल, 4.3 to 5.2 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड इज एप्लीकेबल फॉर फीमेल। अगर आरबीसी काउंट कम हो जाता है, 4 मिलियन से या 3 मिलियन तक आ जाता है, so this condition will be called as abnormal condition, it is called as erythrocytopenia। आरबीसी काउंट कम होने को हम एनीमिया कहते हैं। एंड अगेन इन दिस कंडीशन ड्यू टू डिक्रीज्ड आरबीसी काउंट व्हाट हैपन, हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी। नाउ this all about the RBC. Now functions of RBC is given here. RBC के क्या क्या फंक्शन है? फर्स्ट मेन फंक्शन जो मैंने बार बार रिपीट किया, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एज यू नो, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, रेस्पिरेशन पार्ट में आपने पढ़ा था, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है विच इज कैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग अराउंड 97% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन, और इससे CO2 का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, अराउंड 20 to 30% CO2 ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, विद द हेल्प ऑफ आरबीसी। नाउ आरबीसी ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पीएच ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड का जो नॉर्मल पीएच है, ब्लड इज स्लाइडली अल्कलाइन फ्लूइड, तो उस ब्लड के पीएच को
मेंटेन रखने में आरबीसी यूजफुल है। आरबीसी ऑल्सो डिसाइड्स द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि अगर आरबीसी काउंट इंक्रीज होती है, इट में इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। तो नॉर्मल आरबीसी काउंट मेंटेन द नॉर्मल विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। नॉर्मल विस्कोसिटी इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ब्लड फ्लो फ्रॉम द कैपिलरीज। नाउ आरबीसी also helps in blood clotting mechanism. Clotting mechanism आगे और भी डिटेल में आ रहा है, तो ब्लड को क्लॉट करने में आरबीसी का कंट्रीब्यूशन है। Now the last part given in this RBC is hematocrit. Now what is hematocrit? Hematocrit basically is a proportion, is the ratio of total RBC present in the blood is to total blood. यानी हमारी आरबीसी का प्रपोर्शन पूरे ब्लड में कितना है, दिस प्रपोर्शन इज कॉल्ड एज हिमेटोक्रिट। रिमेंबर, हिमेटोक्रिट वैल्यू ग्रेटली डिफर इन मेल एंड फीमेल। ऑल्सो इट इज डिफरेंट फॉर इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में उसकी रीडिंग अलग है, मेल्स में उसका प्रपोर्शन अलग है, फीमेल्स में उसका प्रपोर्शन अलग होता है। तो हिमेटोक्रिट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो। इट हैज लॉट ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इट इज अ प्रपोर्शन बिटवीन आरबीसी is to total blood. So this is all about the RBC. Now after the completion of RBC, the second type of cell present in the blood is WBC, also called as leukocytes. WBC, the name was given white blood corpuscles because it is colorless to white in color, thus it is called as white blood cells or leukocytes. Leuko stands for white and cyte means cells. Okay, now starting with the details of WBC. It is colorless, nucleated, amoeboid, colorless. It is colorless to white. These WBCs are more or less oval shaped cells with irregular margin. ओवल शेप एक राउंड बॉल के जैसी सेल है और उसकी मार्जिन जो है, उसका जो पेरिफेरी है वो स्मूथ नहीं है, वो रफ होता है, वेवी होता है। तो it is spherical cell. It is nucleated, means always nucleus is present in WBCs. In the previous case you have seen RBCs, mature RBCs do not have nucleus, but WBCs always has nucleus present in it. Amoeboid. Amoeboid in the sense वो अपने शेप को, अपने अपीयरेंस को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, thus it is called as amoeboid. और पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक मतलब उन सभी WBC एक जैसी नहीं होती है। WBC की मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है, अलग अलग टाइप की WBC होती है, उनका शेप अलग हो सकता है, उनकी साइज अलग हो सकती है, उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, thus they are polymorphic in nature. Now, WBC show a very specific type of amoeboid movement. WBC में एक खास किस्म का amoeboid movement होता है. The movement is called as dipedasis. Now, what is dipedasis? देखो, एक WBC है, more or less spherical in shape है. This WBC can change the shape, मतलब वो अपने आप को स्क्वीज करके, अपने आप को नैरो करके एक पतली सी जगह से गुजर सकती है. Let me explain. देखो, हमारी बॉडी में कुछ ब्लड कैपिलरीज, द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड एज कैपिलरीज. कुछ कैपिलरीज इतनी नैरो हैं कि आरबीसीज आर कंपैरेटिवली बिगर इन साइज, यानी देखने में ऐसा लगता है कि आरबीसी इसके अंदर से पास नहीं हो पाएगी, लेकिन आरबीसी स्क्वीज करके इसके बीच में से गुजर जाती है. Thus they show amoeboid movement called as dipedasis. One more significance of dipedasis is, देखो हमारी कैपिलरीज में से जब ब्लड बहता है, कैपिलरीज के अंदर से जब ब्लड पास होता है, एग्जाम्पल ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, इसके अंदर से जब ब्लड पास होता है, ये ब्लड पास हो रहा है, आरबीसीज आर स्मॉलर इन साइज. RBCs are comparatively smaller in size, but RBC cannot come out of the blood capillaries. WBCs are comparatively bigger in size, but they are quite capable of coming out of the capillaries because of dipedasis. डाइपेडासिस के वजह से WBCs अपने आप को स्क्वीज करके कैपिलरीज के बाहर निकल जाते हैं. कैपिलरीज के बाहर जो फ्लूइड है जिसको लिम्फ कहते हैं, लिम्फ में आरबीसीज नहीं होती है, बट WBCs आर प्रेजेंट इन लिम्फ बिकॉज ऑफ डाइपेडासिस.
नाउ एज फार एज WBC काउंट इज कंसर्न, हमारे ब्लड में कितना WBC होता है? अराउंड 5000 to 11,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, यानी WBC काउंट इज मच मच लेसर देन दी RBC काउंट. अगर RBC WBC का प्रपोर्शन हम निकालें तो 1:500 और 1:600 का प्रपोर्शन होता है, यानी एक WBC और उसके इक्विवेलेंट 500 या 600 RBC होती हैं. WBC काउंट इज मच लेस इन कंपैरिजन विद RBC. ओके, WBC काउंट अगर नॉर्मल से कम हो जाए तो दिस लेस WBC काउंट इज कॉल्ड एज ल्यूकोपीनिया. WBC काउंट इतना होना चाहिए 5 to 11,000. अगर WBC काउंट कम हो गया यानी 4,000 आ गया या 4,000 से नीचे हो गया तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ल्यूकोपीनिया. ल्यूकोपीनिया कैन बी सीन इन HIV, इन द केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस और इन सम अदर डिजीजेस ऑल्सो, जहां पे WBC काउंट लेस होता है. बच्चों, WBC काउंट लेस होने से मतलब कि ल्यूकोपीनिया का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि WBC काउंट कम होने से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, बिकॉज WBCs आर मेनली कंसर्न विद प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी. ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस इज इंक्रीज्ड WBC काउंट. अगर WBC काउंट नॉर्मल से ज्यादा हो गया, WBC काउंट 11,000 तक होना चाहिए, WBC काउंट 15, 16,000, 20,000 हो गया, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस. इसके भी कुछ सिग्निफिकेंस हैं. हमारी बॉडी में जब इन्फेक्शन होता है, जब माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, जब बॉडी में पैथोजेंस जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इन्फेक्शन की कंडीशन में इट इज वेरी कॉमनली ऑब्जर्व कि WBC काउंट इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है. क्यों इंक्रीज होता है? वेरी सिंपल, WBC काउंट इसलिए इंक्रीज हो गया बिकॉज WBC हैज टू डील विद द पैथोजन, दे हैव टू किल द पैथोजन, इसीलिए WBC काउंट इंक्रीज हो जाता है. प्रेगनेंसी में WBC काउंट इंक्रीज हो सकता है और न्यूबॉर्न्स में WBC काउंट नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होता है. Now, one more clinical condition called as leukemia, oftenly called as blood cancer. Leukemia or blood cancer is the excessive increase in WBC count. देखो, WBC count normal range up to 11,000, but WBC count थोड़ा सा बढ़ता है, 15 to 20,000 तक भी जाता है. So condition is called as leukocytosis. लेकिन WBC count अगर lakhs में चला जाए, WBC काउंट अगर लैक्स में चला जाए, सो दिस कंडीशन में बी ल्यूकेमिया. ऐसा क्यों होता है? WBC की जो WBC का प्रोडक्शन जहां पे होता है, WBC को प्रोड्यूस करने वाली जो सेल्स हैं, वो सेल्स फास्ट और बहुत फास्ट डिवाइड होती हैं और उसके एक्सेसिव डिवीजन से, उसके एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से ल्यूकेमिया होता है. नाउ एज फार एज फंक्शन इज कंसर्न, फंक्शन WBC का फंक्शन क्या है? WBC का मेन फंक्शन है टू प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू द बॉडी. हमारी बॉडी के डिफेंस के लिए, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए WBCs आर रिस्पॉन्सिबल. सम ऑफ द WBCs दे आर कैपेबल ऑफ एंगल्फिंग द फॉरेन पार्टिकल एंड सम WBCs दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. ओके, now WBCs, they are further classified. This is the classification of WBC is given. This is all about the general properties of WBC. Now the classification of WBC. WBCs can be classified on the basis of presence and absence of granules in the cytoplasm. Once again, WBCs are further classified on the basis of presence and absence of granules in the cytoplasm. जैसे एक WBC है, उसके अंदर न्यूक्लियस है. आपने पढ़ा WBC में न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड है, that is called as cytoplasm. बच्चों, साइटोप्लाज्म में अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे डॉट के जैसे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो ऐसी WBC को हम बोलेंगे ग्रेन्यूलोसाइट. ग्रेन्यूलो स्टैंड्स फॉर ग्रेन्यूल्स एंड साइट स्टैंड्स फॉर सेल्स. मतलब ग्रेन्यूल्स वाली WBC इज कॉल्ड एज ग्रेन्यूलोसाइट. और अगर ऐसी WBC जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है, तो उसको अपन बोलेंगे अग्रेन्यूलोसाइट. मीन्स granules are absent in cells. Granules are absent in cytoplasm of WBC is called as a granulocyte. Now, few points are given
these are the differentiating point between granulocytes and agranulocyte. Remember, granulocytes और agranulocyte ये दोनों WBC हैं, ये दोनों WBC हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है. This granulocyte has polymorphonuclear leukocyte. Polymorphonuclear leukocyte मतलब वो WBC, ल्यूकोसाइट इज WBC, वो WBC जिसके अंदर के न्यूक्लियस का शेप अलग अलग होता है. न्यूक्लियस का शेप अलग अलग होता है. न्यूक्लियस लोब्यूलेटेड होते हैं. सिंगल न्यूक्लियस में मल्टीपल या एक से ज्यादा लोब्स बने होते हैं. दे आर कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज PNL, polymorphonuclear leukocyte. Okay. Formed from myeloid stem cell. देखो WBC के फॉर्मेशन को ना, WBC के फॉर्मेशन को, इसका फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होता है. इसके फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस. ल्यूकोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ WBC. अभी इसका फॉर्मेशन, ग्रेनुलोसाइट का फॉर्मेशन किससे होगा? माइलॉइड स्टेम सेल से होगा. और अग्रेनुलोसाइट का जो फॉर्मेशन है वो लिम्फॉइड स्टेम सेल से होता है. लिम्फॉइड स्टेम सेल से. बच्चों इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, राइट? इनका जो प्रपोर्शन है ग्रेनुलोसाइट का वो 72% होता है. इनका जो प्रपोर्शन है वो सिर्फ 28% होता है. रिमेंबर, दीज सेल्स, ग्रेनुलोसाइट वंस फॉर्म्ड, एक बार बन गई और सर्कुलेशन में आ गई तो उसका फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल. वंस फॉर्म्ड दे डू नॉट डिवाइड. और ये बनने के बाद भी इसमें डिवीजन हो सकता है बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस. दे कैन बी डिवाइडेड बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस. यहां तक क्लियर हुआ? अब जो ग्रेन्युलोसाइट है ना, ग्रेन्युलोसाइट के अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर जो डॉट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, जो ग्रेन्यूल्स हैं, वो ग्रेन्यूल्स बेसिकली सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं. यानी वो साइटोप्लाज्म के छोटे छोटे वेसिकल्स हैं जो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में नजर आते हैं. एंड दोज वेसिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ सेवरल एंजाइम्स. इसके अंदर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होता है. इसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है मगर न्यूक्लियस में लोब्स नहीं होते. इसके न्यूक्लियस में लोब्स होंगे, इसके न्यूक्लियस में लोब्स नहीं होंगे. सो दीज आर द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन ग्रेन्युलोसाइट्स एंड अग्रेन्युलोसाइट. नाउ अब जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं बच्चों, दिस ग्रेन्युलोसाइट्स डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग एबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग एबिलिटी, अगर हम उसको स्टेन करें, उसको रंगें, उसको कलर करें by using biological stain, तो अलग अलग ग्रेन्युलोसाइट जो है वो अलग अलग टाइप के स्टेन को एक्सेप्ट करती है. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्टेन दे एक्सेप्ट, दे आर क्लासिफाइड एज न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड एसिडोफिल और इओसिनोफिल. रिमेंबर, अभी जो बायोलॉजिकल स्टेन होते हैं, जो कलर होते हैं जिससे हम बायोलॉजिकल सैंपल्स को स्टेन करते हैं, वो स्टेन या तो एसिडिक होते हैं, या तो बेसिक होते हैं, या तो न्यूट्रल होते हैं. डिपेंडिंग अपॉन इट्स पीएच दे आर क्लासिफाइड एज एसिड, बेसिक और न्यूट्रल. अभी ऐसी ग्रेन्युलोसाइट मतलब ऐसी WBC, ऐसी ग्रेन्युलोसाइट जिसने न्यूट्रल स्टेन को एक्सेप्ट किया, न्यूट्रल स्टेन के लिए एफिनिटी है, तो उसको बोलेंगे न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रो स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल एंड फिलिया स्टैंड्स फॉर एफिनिटी, अट्रैक्शन. तो ये न्यूट्रल स्टेन को एक्सेप्ट करता है. दूसरी सेल जो बेसिक स्टेन को एक्सेप्ट करेगा उसको बेसोफिल बोलेंगे, और जो एसिडिक स्टेन को एक्सेप्ट करेगा उसको एसिडोफिल्स हम बोलेंगे. तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग एबिलिटी दे आर क्लासिफाइड एज न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल, राइट? नाउ न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, अभी न्यूट्रोफिल का डिस्क्रिप्शन. अभी न्यूट्रोफिल ये एक WBC है जिसका स्फेरिकल शेप है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है. इसके न्यूक्लियस की पिक्यूलैरिटी ये है कि इसका न्यूक्लियस मल्टी लोब्यूलेटेड होगा. इन दिस डायग्राम यू कैन सी अ सिंगल न्यूक्लियस हैज 3 lobes. Remember, number of lobes are not fixed. It may be up to 7 also. 3 से 7 lobes तक प्रेजेंट हो सकते हैं. और इसके साइटोप्लाज्म में फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं, फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं, न्यूमरस ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट. फाइन ग्रेन्यूल्स एंड न्यूमरस ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट. अब ये वाली जो सेल होती है, ये सेल न्यूट्रल स्टेन को एक्सेप्ट करती है. इस सेल का प्रपोर्शन कितना है?
70%, यानी मैक्सिमम डब्ल्यूबीसी में मैक्सिमम सेल कौन सी है? न्यूट्रोफिल है। इसका फंक्शन क्या है? दे आर फेगोसाइटिक इन नेचर। फेगोसाइटिक इन द सेंस दे आर कैपेबल ऑफ एंगल्फिंग द फॉरेन पार्टिकल। जो फॉरेन पार्टिकल हमारे ब्लड में आता है, जो बैक्टीरिया वायरस हमारे ब्लड में आता है, जो पैथोजेंस हमारे ब्लड में आते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ एंगल्फिंग द फॉरेन पार्टिकल एंड दे कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ पस। जो इंजरी की साइड पे पस होती है ना, उस पस में डेड न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होती हैं, उसमें डैमेज सेल्स भी होती हैं, और भी चीजें होती हैं, बट इट कंट्रीब्यूट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पस। सो दिस ऑल अबाउट द न्यूट्रोफिल। बाकी की सेल्स का डिस्क्रिप्शन विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।